या चलो स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. गुड, ओके, ग्रेट। सो या आज हमें एक्सरसाइजेस करनी है। फिर भी मैंने क्लास में आपको एक टेस्ट करवाया था, उसके बारे में दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। दैट इज कॉल्ड पी टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट। Very important test and which help us to identify the nature of the series. It is we write in the form of a theorem. Theorem is the series summation 1 upon n का power p. n is 1 to infinity. That is क्या बना जी? 1 upon 1 का power p, 1 upon summation is over n, p is fixed, p का power p plus so on. It is like this, right? Is convergent if your p is greater than 1. If p is greater than 1, and it is divergent if p is less than equal to 1. Right, friends? This is the statement and it is very simple. Proof I will send you. मैंने आपको बोला मैं अलग से भेज दूंगा आप लोगों को. Proofs are simple, so I will send those. अब देखिए इससे आपको काफी सीक्वेंसेस जो इस पर्टिकुलर नेचर की होंगी, इस पर्टिकुलर टाइप की जितनी भी सीक्वेंस होगी 1 upon n का पावर 2, n का पावर 3, if that p is bigger than 1, it is convergent. Otherwise, for p less than 1 equal to 1, it is divergent. So if this will help you in comparison test. Suppose in comparison one series is of this type, other we don't know, but its character we can understand. We can say that by p test it is convergent or divergent. Then by comparison test I can tell about the other series also. You are getting my point, students? Okay, so how we have to apply it, I show you. Well, we take some problems, exercises. The question is like this. Examine the convergence of series. इसको एग्जामाइन करो जी, कन्वर्जेंस है नहीं है. सीरीज इज लाइक दिस un, where your un is nth term is given as n4 plus 1 minus n4 minus 1. ये मैंने आपको कल भी करवाया था, if you remember, right? Sorry, ये तो किया आपने है ना? You have done it in yesterday's lecture. Okay, I change it. I write root of n minus 1 root of n. ठीक है, ये भी उसी की तरह है. तो कई बार क्या होगा, आपको सीरीज दी है, मोस्टली nth टर्म इज इंपॉर्टेंट, ये टर्म आपको दी होनी चाहिए, मेन आपको ये चाहिए, राइट? क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा वो nth टर्म के एप्लीकेबल होगा, इस पे अप्लाई करोगे. सो सॉल्यूशन,
I write here un is, so we try to simplify it, and if I simplify root terms, we mostly use the process of rationalization, right? What is rationalization? I multiply it, root n plus 1 is changing the sign and dividing with same, right? स्टूडेंट्स मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है. तो दिस इज रैशनलाइजेशन में इसका साइन चेंज करके आपको डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है. एंड इफ यू सी दिस इज एंड दीज टू टर्म्स a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना? तो आई से दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इज दिस n, and this is root n plus this, right students? Now this n and n cancel out, so this is, तो rationalization करके मैंने root by terms में mostly rationalization किया जाता है. So this is root n plus 1 root n. Okay, now what I do, what I can do, I can take root n common, right? When I take root n common, it will be 1 plus 1 by n plus 1. It will like this. Agreed? Yes, sir. देख लो बच्चे लोग, Yes, sir. ठीक है? Yes, रूट एन sir. बाहर ले लिया तो नेचुरली अंदर एन कॉमन लिया हुआ मैंने, तो आप इसको ऐसे, अदरवाइज मैं एक स्टेप इसमें बढ़ा सकता हूँ आप लोगों के लिए. आई कैन रीराइट इट एज दिस n into 1 plus n like this, right? and plus root n, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं. ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो रूट एन बाहर ले जाओ, ठीक है? तो ये इस तरह का आ जाएगा आप लोगों के लिए. So and this is basically, this is, I can say this is equal to, sorry, this is basically 1 upon root n into this term, right? Okay, now अब मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने n का एक कॉमन सा पावर बाहर निकाल लिया. नाउ आई कैन डू वन थिंग, आई टेक bn another series, ठीक है? is 1 upon root n, ले सकता हूं, कोई और ले लिया. मैंने क्यों लिया? क्योंकि जी और जी आपस में काउंट आउट हो जाएंगे और मेरा फ्रैक्शन सिंपल आ जाएगा, ठीक है? आई टेल यू. सो देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn. देखिए क्या आएगा, देखो un में ये 1 अपॉन n है, vn में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, राइट? limit n tends to infinity, and this is nothing but limit n tends to infinity 1 upon 1 plus n plus 1, है ना? Right students? Yes, sir. Okay, now n tends to infinity. Now you know that as n tends to infinity 1 upon n tends to 0. 0. So this limit is 1 upon root of 1 plus 0 plus 1, right? And Yes, this sir. is equal to 1 upon root 1 by 1 is 2. 1 plus 1 is equal to 1 upon 2, 1 upon 2. which is a finite non-zero number, right? ये रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं हम, देखो ये रेशियो लिया हमने u and vn, ठीक है? So therefore why this limit comparison बोलते थे हम इसको,
test. The ratio of finite is what we say. Both are same behavior. Summation Vn, right? Converge or diverge together. तो दोनों का बिहेवियर रेशियो फाइनाइट आ जाए, नॉन जीरो, एक जैसा होगा, राइट? बट summation Vn is 1 upon रूट n. आप पी टेस्ट में देखिए इसको, बेसिकली रूट क्या होता है? रूट इज पावर 1/2, है ना? डाइवर्जेंट. Yes, sir. दिस इज लेस देन 1. दिस इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट. पी टेस्ट भी बोलते हैं, पी सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो जब एक का मालूम हो गया और हमें ये भी मालूम है कि दोनों का बिहेवियर एक जैसा है क्योंकि इनका रेशियो फाइनाइट आ रहा है, राइट? सो बट वन सीरीज वी नो, पी टेस्ट का ये फायदा, ठीक है? तो हेंस इस सीरीज समेशन un which is nothing but summation, क्या टर्म थी? रूट n प्लस 1 माइनस रूट n, है ना? ये था, इज डाइवर्जेंट. तो देखा आप लोगों ने कैसे प्रूफ किया हमने? तो पी टेस्ट में, क्योंकि पी टेस्ट इज वेरी सिंपल, तो हमें जो कंपैरिजन करना है, मोस्टली हम कंपैरिजन के लिए इन केसेस में जब रेशियो लेते हैं तो पी टेस्ट वाला ही सीरीज लिखा जाता है, क्योंकि एक तो रेशियो फाइनाइट आ जाएगा और उसका नेचर हमें बड़ा इजीली मालूम हो जाता है, एंड वी सॉल्व इट. ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर. ओके. Yes, sir. तो कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, एनी क्वेश्चन अभी तक? अदरवाइज आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको सीरीज दिया गया है un, और un जो है, un इज n क्यूब प्लस 1 पावर 1/3 माइनस n. दिस इज योर un. ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. हियर un is n cube plus 1 power 1/3 minus n. Okay, and this is equal to, suppose I take n cube common, पावर 1/3 है, मैं आपको थोड़ा स्टेप बढ़ा के ही बताता हूँ. Suppose I take n cube common, so it will be 1 upon n cube, है ना? Just like this, whole power 1/3. ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर. Yes, sir. राइट, एंड दिस इज इक्वल टू, अब पावर 1/3 है, जहां पे देखिए जी n क्यूब है, ये पावर 1/3, इसको अलग करना हो तो n आ जाएगा मेरा, राइट? इट विल बी n 1 upon n क्यूब पावर 1/3 माइनस n, राइट? राइट Yes, स्टूडेंट्स? sir. गुड. नाउ आई कैन टेक n कॉमन. आई टेक n कॉमन, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं. दिस इज बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिखना आता है ना, 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन n क्यूब, है ना? तो ये क्या होता है? 1 n इंटू n माइनस 1 होता था, मीन्स 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. डू आई लाइक दिस वे? है ना? ऐसे लिखते हो? Yes, sir. ऐसे लिखते हो? तो ये 2 और 1/3 के साथ ये मिलके हो जाएगा आपका 1/6, है ना? और 1/3 माइनस 1 आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है? फ्रैक्शंस में है, और साथ में इसकी पावर n/q की पावर स्केयर हो जाता है, तो 3 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस सो ऑन, और माइनस 1 बाहर, n कॉमन लिया हुआ है. थोड़ा इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में रखना पड़ेगा मुझे, या इसको छोटी ब्रैकेट्स में रखना पड़ेगा.
and then -1 and then big bracket। ये जो ब्रैकेट स्मॉल है इसमें मैंने 1/n³ का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने 2 ही टर्म्स बनी है मेरे लिए, ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये समझ आया आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया बच्चा, a + b की पावर n। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू दिस या n, राइट। अब एक चीज देखिए, ये +1 और ये -1 क्या है ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो उससे क्या होगा, द फर्स्ट टर्म इज नाउ, इसमें फर्स्ट टर्म 1/3 n³, राइट। देन Yes, sir. नेक्स्ट टर्म में देखिए, नेक्स्ट टर्म में आपको मिलेगा ये 1/3 -1 अगर आप करो तो ये नेगेटिव हो जाता है ना। तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, कोई फर्क नहीं, हमें इस टर्म को इतनी जरूरत ही नहीं है, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा 1/n6 एंड सो ऑन। 1 खत्म हो गया। अब मैं इस ब्रैकेट को ऐसे पुट करता हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सी पावर है जो कॉमन आ रही है, जो सभी में आएगी, जिसके मल्टीपल 3, 6, नेक्स्ट क्या होगा? 9. नेक्स्ट होगा 9, है ना। कैसे आया? पावर 3 वी कैन टेक कॉमन, Yes, sir. राइट। N and I take 1/3 n³ कॉमन, उसकी जगह 1 आ गया। ठीक है, ये प्लस था, सॉरी, प्लस 1/, अब 3 कॉमन है तो 6 की जगह 2 आ गया, 1/3 -1, तो n3 कॉमन लिया तो ये 3 बचेगा, सो 1 आगे n की पावर से आती रहेंगी। ठीक है, 3 के बाद 6। ठीक है स्टूडेंट्स, Yes, देख लो sir. बच्चा लोग, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 n², 1 + 1/2 1/3 minus 1/n³ + 1। क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई करना था, अदरवाइज आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। सिंप्लीफाई करके मैंने जो n की पावर कॉमन आती है उस n² वाली आ गई, राइट। तो अब मुझे इस n² से दिख रहा है कि व्हाट आई शुड डू, आई टेक vn एज 1/n², नहीं, सो दैट n² कैंसिल आउट और मेरा n टेंड टू इंफिनिटी होगा, तो 1/n सारे 0 हो जाएंगे और ये एक फर्स्ट टर्म बचेगा और 1/3 पावर वैल्यू आ जाएगा मेरा, नहीं मुझे दिख रहा है सामने। तो vn मैंने ले लिया ये टर्म, क्यों लिया? क्योंकि जहां पे n² है, इसलिए n² 1/n² आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इज द रीजन आई टेक। ये अपनी मर्जी से हम लेते हैं, पर इसके लिए हम देखना कि फाइनाइट लिमिट कब मिलेगा। देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn, 1/n² कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगा 1/3, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, राइट। देखिए ये एक्सप्रेशन आप लोगों के पास, ठीक है, un जे है। तो जब 1/n² कैंसिल हो जाएगा, इधर 1/3 बचेगा, इधर 1 बचेगा। इधर देखो 1/n³, 1/∞ 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, इसके आगे सारी टर्म 0 हो जाएंगी, बेसिकली 1 ही बचेगा आपके पास, तो 1/3 इज आंसर। ठीक है, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, राइट। नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आए तो इसका मतलब देयरफॉर आई कैन से बाय लिमिट comparison test, this summation un and other series vn, okay,
converge or diverge together. Right, students? What summation Vn, which is n square, is p is greater than 1, so it is convergent by p series test or p test. ठीक है students? Yes, sir. Okay, so hence the series जो आपको दिया गया है उसका nth टर्म था आपके पास, you are given the nth term is क्या टर्म थी, या n q plus 1 पावर 1/3. मैं आपको जो थोड़े जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ दे आर डिफिकल्ट पार्ट करवा रहा हूँ, सिंपल पार्ट जो है आराम से कर लोगे. इज कन्वर्जेंट. इस तरह के क्वेश्चन थे जो ऐसे पावर्स में दिया था, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा हमें, जरूरी था. ठीक है, इज कन्वर्जेंट प्रूव हो गया. पार्ट थर्ड, in part third you have a series e minus n square. ठीक है, over n. So here ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, गुड क्वेश्चन. Here un is e minus n square, right? But what we do, हम इसको और सिंप्लीफाई बहुत अच्छा कर सकते हैं. आपको मालूम है e ऑफ n स्क्वायर क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आप लोगों को मालूम है बच्चा लोग, स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंशियल, चलो आई राइट लाइक दिस. सी ई एक्स क्या होता है, कौन बताएगा? या स्टूडेंट्स? शुभम तुम बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर दिस फॉर्मूला ऑफ ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन? बच्चा लोग, ई एक्स इज 1 plus x upon 1 factorial x square upon 2 factorial x cube upon 3 factorial plus so on, right? But here, so therefore I replace this x by n square, then it will be 1 plus n square upon 1 factorial, right? So n square का square हो गया n4 upon 2 factorial and so on. It will be like this, right students? Yes, sir. Yes, sir. Now see, I'm following different approach for this question. Now I can say, so this implies I can say e n square is bigger than n square, and it is for all n. Can I say like this? Can I say like this? Why? Because e n square is this big expression, and this n square is one term of this, one term, right? So e n square contains this term and other terms, and it is addition, all the terms are positive. So e n square is greater than n square, right? Yes, sir. Okay.
Why? Because en square containing many terms. N square is one of the term. So naturally it is bigger than this. Right? Good. But हमें जो दिया गया e minus n square दिया गया है. Right? So this implies 1 upon en square is less than 1 upon n square. क्या नहीं? Naturally रेसिप्रोकल में इनक्वलिटी आपका चेंज हो जाता है. Right? Yes, sir. Right, students? Yes, sir. So that is Yes, sir. e minus n square. क्योंकि यार मैं ऐसे लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा. And this is less than 1 upon n square. Then this implies, देखो कितना सिंपल प्रूफ ढूंढा हमने इसका. e minus n square summation n is also less than, क्योंकि ये सभी टर्म्स के लिए है. Now which test we are going to use? Comparison test. Right? Now see, 1 upon n square, this series is convergent by p test. And this e n square minus n square is less than this. So convergent, it must be convergent then. Right? Yes, sir. But this is convergent by p test. So p test or p series test, don't be confused. This is same p test. ठीक है? So therefore by comparison test, क्योंकि ये सबसे easy way था इसके लिए. By comparison test, this summation is convergent. Right, students? So otherwise, it question Yes, sir. looks very difficult, but you have to apply your mind, your logic, and how to express the terms in simple way. These all things count. But for these things you need a practice. So if you practice daily, then things become simple. Mathematics में practice जरूरी है होते हैं. ठीक है? ये part 3 था हमारा, right? Now I move to part 4. Part 4 is 1 plus 1 upon 2 का square, 3 का cube, 4 का sorry, and so on, 1 upon n का power n, so on, like this. That is summation 1 upon n का power n. यही हुआ ना? Yes, sir. So here your nth term is 1 upon n का power n, and this n is your natural number. Now can I say n power n is greater than 2 का power n when my n is greater than 2? Can I say like this? Think about it. Think about it. Yes, sir. बाकी लोग भी सोचो. आप खुद एग्जाम्पल मन में सोचो. Yes, sir. बच्चा माइक आना किसी. Yes, sir. Yes, sir. So n का power n is greater than 2 का power n. When n is greater than 2 means this n, जितने भी n है आपके पास, इसका वैल्यू 2 से शुरू होगा. नेचुरली अगर n 2 है तो 2 का पावर 2, राइट? इट इज 2 का पावर 2. n greater than 2 है. Greater than 2 means
3 आ गया, फिर इक्वलिटी नहीं है, तो 3 का पावर 3 is greater than 2 का पावर 3, right students? Yes. You can Yes, check sir. it. Then 4 power 4 is greater than 2 का power 4. 5 power 5 is greater than 2 का power 5. It is clear. और देखो ये एक्सप्रेशन हमने ढूंढ बनाना पड़ता है, माइंड इट इज ऑल जो लॉजिक एंड जो इंटेलिजेंस, ठीक है, एग्रीड? और आई हैव टोल्ड यू that removing finite number of terms of the series from the beginning does not change its behavior. You know, I am just beginning from, I'm skipping 2 terms. So skipping 2 terms, these 2 terms doesn't make it change in the behavior. आपको ज्यादा मैंने आपको एज हमारा नोट्स लिखवाया था जी, है ना? Yes, sir. तो Sir. yeah, okay. So this implies 1 upon n का power n is less than 1 upon 2n, right? Yes, sir. But when you write in reciprocal form, then you say it is true for all n. Then it is true for all n. You can check it. ओके, हम वही रखते हैं, 2 टर्मों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज नॉट ए कंफ्लिक्ट. नाउ दिस इंप्लाइज समेशन n का पावर n is less than summation 2 का पावर n. Now what about this convergence 1 upon 2 का पावर n कैसा होगा जी? ये मैंने आपको करवाया हुआ है, बहुत सिंपल है, आप एक स्टेप में बता सकते हो बिना प्रूफ के. एक ऐसा सीरीज है. नाउ दिस सीरीज, which kind of series it is? Geometric series. Yes, geometric. और geometric series कब convergent होती थी? When its common ratio is less than 1, right? Yes, sir. When r is less than 1. Geometric series with common ratio 1/2 which is less than 1, ठीक है, is convergent. Is convergent, right? Yes, sir. So therefore by comparison test, okay, by comparison test we can say series 1 upon n का power n is convergent, right students? So जो भी ये हम कर रहे हैं ना क्वेश्चन, दे आर वेरी क्लासिकल क्वेश्चंस, और एवरी क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंट काइंड. ये कौन सा पार्ट था स्टूडेंट्स? थर्ड, फोर्थ? फोर्थ. ओके, नाउ वी डू फिफ्थ पार्ट. टाइम है ना हमारे पास? चलो जी, लास्ट क्वेश्चन. Here we are given 1 upon, I write 2n minus 1 power p summation over n, ठीक है. This is a question.
2 minus 1 upon n thousand divided by 12. देखो आपको रोज दिख रही है अभी हर बार हम नहीं कर रहे हैं ये भी एंड टर्म ऐसे तो हमारा 0 हो जाएगा व्हेन एंड अब ऐसे मीडियन 1 upon n ठीक है तो therefore lemma n infinity 2n upon n n की कट जाएगा 1 upon n राइट राइट lemma Yes, sir. n infinity 1 upon 2 minus 1 upon n power 2 राइट राइट यही आएगा n infinity 1 upon n क्या हो जाएगा 0 1 upon 2 power 2 ठीक है any questions friends any questions actually ठीक है चलो any questions Yes, sir. आपको समझ आ रहा है क्या किया हमने चलो रिस्पांस किया करो डॉट मिलेगी तो therefore I can say by lemma comparison plus and load convert R diverse to that but by Peter this is what the real data that is the end is equal to 1 upon is convergent if P is greater than 1 and divergent and P is less equal to 1. Same behavior is for the okay. And series जो हमें given है 1 upon convergent is greater than 1 and divergent is less than 1. देखिए यहाँ पे सभी केस all depends upon the value of P0. ठीक है all depends upon the value of I give you some exercise from home 10 questions. First part is मैं आपको एक्स दूंगा
Thank you very much.